નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેબ સંકુલના ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર હું ચિરાગ જોશી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, દિવાળી અને નવા વર્ષના આપ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. આપ સૌનું નવું વર્ષ લાભદાયી, શુભદાયી અને વિદ્યામય જાય તેવી અઢળક શુભકામનાઓ હું અર્પું છું. મિત્રો, જે એક્ઝામ આપણે લઈએ છીએ, બરાબર, ટેટ ટાટની આપણે જે તૈયારી આપણે કરીએ છીએ, હવે તો એ પરીક્ષાની તારીખો પણ હવે તો આવી ગઈ છે. મિત્રો, ફેબ્રુઆરી માર્ચમાં ગમે ત્યારે એક્ઝામ લેવાશે. જે ભાષાના ઉમેદવારો છે, ઓકે, જેમણે ભાષામાં એપ્લાય કરવાનું છે, તો એવા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે તથાસ્તુ સિરીઝ ભાગ 1થી શરૂઆત કરી હતી અને આજે આપણે 5મા ભાગમાં પહોંચી ગયા છીએ. બહુ ખૂબ ઉમદા આપણે પ્રતિસાદ પણ મેળવ્યો છે વેબ સંકુલ દ્વારા અને ઘણા વિદ્યાર્થીઓનો કહેવાય છે કે સારા એવા રિવ્યૂ પણ આવ્યા છે. આપણે કોમેન્ટ બોક્સમાં પણ તમે યુટ્યુબમાં જોઈ શકો છો મિત્રો. અને આ સતત આ સિરીઝ જે કહેવાય છે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો તરફથી જે કહેવામાં આવ્યું છે કે સાહેબ આ સિરીઝ જે છે તથાસ્તુની એ અમારા માટે ચાલુ રાખજો. કેમ કે સંસ્કૃત અને હિન્દીના એવા સારા લેક્ચર્સ આપણને મળી રહે, આપણને એના વિશે સારું જ્ઞાન મળી રહે, એના માટે અમે પણ અથાગ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. મિત્રો, જો મિત્રો આ વેબ સંકુલ ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર જો આપ કોઈ નવા ઉમેદવાર છો તો મિત્રો તમે દરરોજ નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે, એનો સંદેશો મળતો રહે, એના માટે પહેલાં તમને આ વેબ સંકુલ જે ચેનલ જે છે યુટ્યુબની એને તમે સબસ્ક્રાઈબ કરો. પહેલાં બેલ આઇકન પર ઓલ ધ ક્લિક કરો, જેથી તમને તમામ નોટિફિકેશન સમયસર મળતી રહેશે. અને આ મિત્રો વિડીયો જોયા બાદ તમે એક લાઈક તમારા મિત્રો સાથે શેર પણ કરજો. જો મિત્રો વધુ પસંદ આવે છે ને તમને આનાથી કંઈક ને કંઈક સારું એવું જ્ઞાન મળતું રહે છે તો આ વિડીયો સતત જોતા રહેજો. અને જો તમે નવા છો તો અગાઉ પણ આપણે તથાસ્તુ ભાગ 1થી શરૂ કરીને જે હિન્દી અને સંસ્કૃતના ખાસ કરીને જે વિડીયો મૂક્યા છે મિત્રો એ જોજો, જેનાથી તમારું જે ઇવાલ્યુએશન જે છે એ ઘરે બેસીને થઈ શકશે. ઓકે, તો ફરીથી હેપી ન્યૂ યર એન્ડ હેપી દિવાળી. તો મિત્રો, શરૂઆત કરતાં પહેલાં એપિસોડ ભાગ 5 આજે આપણે હિન્દી પ્રશ્નોત્તરીને ધ્યાનમાં રાખીને કેટલાક પ્રશ્નો મૂકવાના છે. મિત્રો, પ્રશ્નો મૂકતા પહેલાં જે વેબ સંકુલને વિદ્યાર્થીઓનો પ્રતિસાદ મળ્યો છે, વેબ સંકુલ હંમેશા વિદ્યાર્થીઓ માત્ર, બરાબર છે, વેબ સંકુલ હંમેશા વિદ્યાર્થીઓ માટે કંઈક ને કંઈક નવા અવતરણ પ્રયોગ કરતું રહ્યું છે. જેમ કે વિદ્યાર્થીઓ માટે એક એવો માહોલ ઊભો કર્યો છે ટેટ ટાટ માટે થઈને, કારણ કે શરૂઆતમાં જે આપણે એક બેચ મૂકી, પછી બીજી બેચ મૂકી અને હવે ત્રીજી બેચ જે છે એ લોન્ચ કરવા જઈ રહ્યા છે. મિત્રો, કેમ તો અત્યાર સુધીમાં એવું હતું મિત્રો કે ટેટ ટાટની તૈયારી કરાવનાર ઘણી સંસ્થાઓ હતી અને અત્યારે પણ કરાવે જ છે, પરંતુ આપણે એક મહત્ત્વ, આપણી વિશેષતા શું છે વેબ સંકુલની, તો મિત્રો ટેટ 1 જે છે, બરાબર, અને ટેટ 2 જેની હાલ અત્યારે ભરતી પડી છે, તો આ બંને ભરતીઓમાં દરેક સંસ્થામાં આપણને દરેક જગ્યાએ આપણને કંઈક ને કંઈક ભણવા મળે જ છે, બરાબર. તો વેબ સંકુલની વિશેષતા શું છે? તો તમને પાર્ટ 1 તો બધા કરાવે જ છે, પરંતુ આપણે પાર્ટ 2 પણ કરાવીએ છીએ, બરાબર. પાર્ટ 2 પણ હવે તો બધી જગ્યાએ કરાવે જ છે, ના નથી, ઘણી જગ્યાએ શરૂઆત થઈ છે, પરંતુ મિત્રો આપણી વિશેષતા એ છે કે પાર્ટ 2માં પણ આપણને સફળ અને સારું એવું પરિણામ આપી શકે એવું કોન્ટેન્ટ કોણ કરાવે છે? તો એ તમને વેબ સંકુલ કરાવશે મિત્રો. જેમાં ભાષાના વિદ્યાર્થીઓ માટે જે સંસ્કૃત અને હિન્દી જે કોર સબ્જેક્ટ છે, જેમાં સૌથી વધુ મૂંઝવણ, સૌથી વધુ એનો માર્ક્સ જે છે ને, આ છેલ્લા 2011થી મિત્રો લેવાયેલી જેટલી 2017 સુધીની જે લેવાઈ છે ટેટ 2ની એક્ઝામ, એ ટેટ 2માં જેટલા પણ સંસ્કૃત અને હિન્દીમાં સૌથી વધારે માર્ક્સ જનારા આપણા ભાષા શિક્ષકો બન્યા છે મિત્રો. સૌથી વધારે માર્ક્સ આમાં ગયા છે. કેમ? એક તો પહેલાંથી સંસ્કૃત આપણને શાળા માધ્યમથી જ આપણને સરખું ભણવા નથી મળ્યું. હિન્દીમાં આપણને એટલી બધી અવેરનેસ નથી મિત્રો હજી સુધી, એટલે આ બંને વિષયને આપણે છે ને ગણ્યા નથી. પણ ખરેખર તમારું જે મેરિટ જે છે ને એ મેરિટ જે છે બનાવવા માટે તમારે સૌથી વધુ જો કોઈ ઉપયોગી વિષય હોય તો મિત્રો એ સંસ્કૃત અને હિન્દી છે. આની ઉપર આપણે ધ્યાન આપવું જ પડે. ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રો હિન્દી છે ને 20 માર્કનું હોય તો 20માંથી માંડ એ 15 સુધી પહોંચે છે, તો તમારા 5 માર્ક જતા રહે એટલે બહુ મોટી લોસ કહેવાય મિત્રો. 5 માર્ક્સ જતા રહ્યા એટલે તમારા સીધા તમે મેરિટની યાદીમાં
સીધા તમે 20,000ની જો યાદી હોય મેરિટ લિસ્ટની તો એ 20,000માં સીધા તમે 2,000ના નંબર ઉપર આવી જાઓ. ઓકે, એટલે કે તમારું જે મેરિટ લિસ્ટ હાઈ હોવું જોઈએ એની જગ્યાએ ઘગડીને સીધું નીચે આવી જાય છે. તમે છેક 15,000 છોકરાઓને પાછળ શું કહેવાય છે કે એમને આગળ ધકેલી લેશો અને તમે પાછળ જઈ જશો. એ જ વસ્તુ સંસ્કૃતમાં થાય છે કે 15 માર્ક્સના સંસ્કૃતમાં 10 કે 11 કે 12 એવા અટેન્ડ કરે છે. એ પણ સારી મહેનત કરનારા વિદ્યાર્થીઓ જ કરી શકે છે, બાકી નથી કરી શકતા. તો શું આપણે 15માંથી 15 લાવી શકીએ? શું 20માંથી 20 આપણે હિન્દીમાં લાવી શકીએ મિત્રો? યસ, કેમ કે અમે તમને પ્રોપર જે પાઠ્યપુસ્તકો જે છે એ પાઠ્યપુસ્તકો તમને ઓગાળીને પીવડાવી દેવાના છીએ. અમે આ પાઠ્યપુસ્તકો જે છે ને તમને ઓગાળીને પીવડાવી દઈશું. અને અમારામાં એ કળા જે છે, વેબ સંકુલની આખી ટીમ પાસે મિત્રો એ કળા છે. તમે જેટલા પણ વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા આવે છે, બરાબર, જે ભણે છે, એ બંને બેન્ચના વિદ્યાર્થીઓને પણ તમે પૂછી શકો છો કે ખરેખર આવું છે. ઓકે, અમારા 2 કલાક વધારે જાય એની અમે પરવા નથી કરતા ભણવા માટે, પરંતુ અમારે વિદ્યાર્થીઓને એક સારું સંતોષ મળવું જોઈએ. વિદ્યાર્થીઓ માટે જ અમે સૌથી વધારે આ કામ કરીએ છીએ. વિદ્યાર્થીઓ સારું રિઝલ્ટ આવશે તો 100% મિત્રો તમે ફરીથી અમારા દ્વાર જે છે એ ખખડાવવાના જ છો તમે. ઓકે, તો તમારા માટે ખાસ આ લઈને આવ્યું છે વેબ સંકુલ ન્યૂ ટેટ ટાટ ઓફલાઈન બેચ. ઓકે, ન્યૂ ટેટ ટાટ ઓફલાઈન બેચ. ઓકે, તમારું બાળપણનું મિત્રો સપનું છે શિક્ષક બનવાનું, અને આ શિક્ષક બનવાનું સપનું જે છે હવે આપણે રોડવાનું નથી મિત્રો, એ સાકાર કરવાનું છે. આ સપનું રોડાઈ જવું જોઈએ નહીં, સાકાર કરવાનું છે. સાકાર કરવા માટે શું કરવાનું છે મિત્રો? જો 1/11/2022થી નવી એક બેચ લોન્ચ થઈ રહી છે. સવારે 10:30 થી 12:30, એટલે કે સુંદર મજાનો સમય, સવારનો સમય છે, બરાબર. આપણું માઇન્ડ પણ ફ્રેશ હોય, મજા આવશે ભણવાની. ઓકે, આ 2 કલાકના ગાળામાં તમે દરરોજ કંઈક ને કંઈક નવું શીખવાના છો, બરાબર. સાથે અહીંયા તમને એક ફીની પણ બાબત કહી દઉં કે મિત્રો આમ તો 30,000 રૂપિયા ફી આપણે રાખેલી હોય છે, પરંતુ 31/10 એટલે કે ઓક્ટોબર મહિનાની, આ મહિનાની છેલ્લી 31 તારીખ જે છે, જો ત્યાં સુધીમાં તમે રજિસ્ટ્રેશન કરે અને એડમિશન લઈ લો છો તો મિત્રો 5,000 રૂપિયા તમને ડિસ્કાઉન્ટ મળી જશે. એટલે કે સીધી આ 30,000માંથી તમને 5,000 લેસ થઈ 25,000 રૂપિયામાં આ કોર્સ એટલે કે તમને ઓફલાઈનમાં આવી શકશો. હવે જો મિત્રો ઓફલાઈનમાં તમે આવો છો તો ઓફલાઈનમાં કંઈક તો તમને લાભ મળવો જોઈએ. 25,000 રૂપિયામાં તમે ફી સામે ન જોશો મિત્રો, ફી સામે ન જોશો. આ 25,000માં તમને કઈ વસ્તુ મળે છે એ ધ્યાન આપો મિત્રો. જો તમારું પાર્ટ 1 અને પાર્ટ 2 ક્લિયર થવાનું છે. ઓકે, દરેક વિષયનું એકેડેમી દ્વારા તૈયાર થયેલું ક્લાસ મટીરિયલ. શું મળશે? ક્લાસ મટીરિયલ મળશે મિત્રો, જે બધા અલગ અલગ તજજ્ઞોએ બેસીને બનાવેલું છે વિદ્યાર્થીઓ માટે. બહુ ઘણી મહેનત કરી છે મિત્રો, સતત છેલ્લા 6 મહિનાથી કહેવાય છે કે અમે એનાલિસિસ કરીને આ કન્ટેન્ટ તૈયાર કરેલું છે. 300+ કલાકનું, અહીંયા કલાકો લખ્યા છે પણ કેટલા? 300 કલાકના પ્લસ કહેવાય છે કે તમને શિક્ષણ કાર્ય આપવામાં આવે છે. ઓકે, સ્વમૂલ્યાંકન તમે કહી શકો એટલા માટે તમને ડેઇલી ટેસ્ટ પણ જરૂરી છે. તમને જે ચલાવવામાં આવશે, જે ટોપિક ચાલ્યો એનામાંથી જ કહેવાય છે કે પ્રશ્ન કાઢી અને બીજા દિવસે એનો ટેસ્ટ, તો તમને પણ ખબર પડે કે ભાઈ ગઈકાલે આપણે શીખ્યા તો એનું આજે આપણને યાદ રહ્યું કે નહીં. ઓકે, તો એ પણ તમે ઇવેલ્યુએશન કરી શકો. માનો કે અઠવાડિયામાં બધું ભેગું થયું છે તો શું ખીચડો તો નથી થયો ને? આપણે એ તપાસવા માટે તમારું વીકલી ટેસ્ટ લેવાનું છે. અને આખા મહિનામાં તો બહુ મોટો ખીચડો થાય ભાઈ, તો એના માટે એ ખીચડો ન થાય એના માટે મંથલી ટેસ્ટ છે. તમે સતત ટેસ્ટ સાથે જોડાયા રહો તો શું છે, તમારું પોતાનું ઇવેલ્યુએશન થાય તો તમને ખબર પડે કે ભાઈ હજી મારું ક્યાં માઇનસ પોઈન્ટ છે, ક્યાં મારો વીક પોઈન્ટ છે, ક્યાં મારો પ્લસ પોઈન્ટ છે. એ ખ્યાલ આવે એટલા માટે આપણે ડેઇલી, વીકલી અને મંથલી ત્રણેય ટેસ્ટનું આયોજન કરીએ છીએ. સારામાં સારું, બરાબર છે. સમય જતાં આપણે મોક ટેસ્ટનું પણ આયોજન કરીએ છીએ, બરાબર. ક્લાસરૂમ કોર્સ, ક્લાસરૂમમાં માનો કે કોઈક દિવસ તમે બીમાર છો કે કોઈક એવી કંઈક આવી ગયું, બરાબર છે, કે તમારી ઇમરજન્સી, તમે ક્લાસમાં નથી અટેન્ડ કરી શકતા એ દિવસ, તો તમને એ દિવસે રેકોર્ડ થયેલો જે ક્લાસરૂમ કોર્સ જે છે એ તમને ફ્રી મળે છે, બરાબર. આની સાથે જ આ 25,000 ફીની અંદર તમને આ બધી વસ્તુ મળવાપાત્ર છે. અને પ્લસ એપ્લિકેશન જે કોર્સ છે એ પણ તમને મળવાનો છે, કે જે અત્યારે આ લાઈવ જે રેકોર્ડ થાય એ પણ તમને મળવાનો છે. અને એ પણ કેટલા વર્ષ માટે? તો મિત્રો 1 વર્ષ માટે છે. કદાચ નથી અને સરકાર પરીક્ષાની ડેટ જે છે પોસ્ટપોન કરે તો પછી તમને તો કંઈક ફાયદો મળવો જોઈએ ને ભાઈ. પછી ફરીથી તમે પૈસા ખર્ચીને પાછા ફરીથી ક્લાસ કરવા જાઓ, એના કરતાં બેટર થાય છે કે તમે ઘરે બેસીને પણ રિવિઝન તો કરી શકશો.
આ સુવિધા પણ તમને વેબ સંકુલે આપી છે. હવે અહીંયા તમે મનોવિજ્ઞાનની અંદર જોવો છો કે બાળ વિકાસ અને બાળ મનોવિજ્ઞાન, શિક્ષક અભિયોગ્યતા, શિક્ષણના સિદ્ધાંતો, વર્ગ વ્યવહાર, આ જે મહત્વના જે વિષયો છે એની ઉપર તો ભાર આપવાનો જ છે. એ સિવાય ટેકનિકલ સબ્જેક્ટ પણ આવે, બરાબર છે, બીઆરસી, સીઆરસી વગેરેના, કે જે આમાંથી પ્રશ્નો પૂછાય છે પરીક્ષામાં એના ઓરિએન્ટેડ. માનો કે તમારે આના વિશે વધારે વિગત તમારે જાણવી હોય તો શું કરવું પડશે? તો વધારે વિગત જાણવા માટે મિત્રો તમે 311 વેબ સંકુલ શાલીન ગેલેરિયા કોમ્પ્લેક્સ, સંગીત સર્કલ G1 ગાંધીનગર ગુજરાત 382006 આવી શકો છો સ્થળ ઉપર. બાકી ઘરે બેસીને માહિતી મેળવવા માંગો છો તો આ બધા હેલ્પલાઇન નંબર છે, તમે કોઈ પણ નંબર નાખશો, બરાબર છે, તો સવારના 9 થી સાંજના 6 સુધીમાં તમે કોલ કરજો, તમને તમામ માહિતી મિત્રો મળતી રહેશે, બરાબર છે. ઓકે, તો ચાલો આપણે હવે શરૂઆત કરીએ છીએ મિત્રો પ્રશ્નોત્તરીની. તો પ્રશ્નોત્તરીની હારમાળા આપણે કહેવાય છે કે સતત કહેવાય છે કે વહેરાવીએ, અને પહેલો જ પ્રશ્ન તમારી સામે હું મૂકું છું. તો પ્રશ્ન 1, माँ अपने पुत्रों के लिए खाना बनाती है. माँ अपने पुत्रों के लिए खाना बनाती है. पदक्रम संबंधी नियमानुसार इस वाक्य का प्रकार बताइए. देखो यहाँ एक वाक्य जो है वो दिया गया है और इस वाक्य में कौन सा प्रकार आपको बताना है, प्रदर्शित करना है, तो वो संबंध के नियमानुसार आपको ये इन वाक्यों का प्रकार बताना है. मतलब माँ अपने पुत्रों के लिए खाना बनाती है, तो ये किस प्रकार का वाक्य है, बराबर. पद संबंध के नियमानुसार ये किस वाक्य बनेगा? जैसे कि हम बोलते हैं गुजराती में विभक्ति, तो ये विभक्ति के ओरिएंटेड ये पूछा गया है आपको क्वेश्चन. तो भाई करण है, मतलब तृतीय विभक्ति के नियमान संबंध से है, या चतुर्थी विभक्ति संप्रदान से है, या पंचमी विभक्ति अपादान से है, या फिर सप्तमी विभक्ति अधिकरण के संबंध से ये वाक्य है. तो मित्रों इसका आंसर क्या आएगा बताइए आप. ओके, सोचिए जरा. चलो मैं बताता हूं आपको. ये इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारा बी, संप्रदान. देखो संप्रदान किस तरह बनेगा? जब माँ, संप्रदान का मीनिंग होता है मित्रों कि आदान प्रदान. आदान प्रदान मतलब संप्रदान. ओके, जब कोई देने वाला व्यक्ति हो, देने वाला और सामने प्राप्त करने वाला, तब ये दो व्यक्ति, मतलब एक देने वाला व्यक्ति है, एक सामने प्राप्त करने वाला. यहाँ क्या है कि भाई माँ खाना बनाती है, मतलब माँ खाना बनाएगी, वो देगी. किसको खाना देगी? तो अपने पुत्र को. मतलब यहाँ देने वाला कौन है? अपनी माँ है. और माँ किसको देगी? मतलब प्राप्त करने वाला कौन है? तो पुत्र. तो मतलब कि आदान और प्रदान दोनों के संबंध से है, तो इसे संप्रदान विभक्ति मतलब संप्रदान वाक्य का प्रकार कहेंगे, जो पद क्रम के नियमानुसार होता है. तो चलो सेकंड क्वेश्चन के तरफ आगे बढ़ते हैं. और सेकंड क्वेश्चन ये है आपके सामने. तो क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के डैश आते हैं, मतलब क्रिया विशेषण क्रिया के कहाँ आते हैं? आपको वहां जो रिक्त स्थान है वो आपको पूर्ण करना है. ऑप्शन ए है पूर्व में आते हैं, बी मध्य में आते हैं, सी अंत में आते हैं, या फिर डी पूर्व और अंत दोनों में आते हैं. देखो आप जरा गौर कीजिएगा मित्रों, यहाँ क्रिया विशेषण के बारे में बताया गया है कि क्रिया विशेषण कब आएगा? क्रिया के पहले, मध्य में, अंत में, या फिर पूर्व और अंत दोनों में आएंगे. तो यहाँ आंसर आएगा आपका मित्रों पूर्व में. जैसे कि हम बोले कि भाई लोचन धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है. भाई एग्जाम में तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा. यहाँ धीरे धीरे चल रहा है, बराबर. तो ये चल रहा क्या है? क्रिया है. ये क्या है? क्रिया है. अब देखो क्रिया विशेषण, देखो ये क्या है? चल रहा है. किस तरह चल रहा है भाई? तो धीरे धीरे चल रहा है. ये क्रिया की रीत बता रहा है, रीतवाचक क्रिया विशेषण है. तो यहाँ क्रिया के कहाँ आया? पूर्व में आया, ना कि अंत में, ना कि मध्य में. भाई मध्य में तो कहाँ आएगा? ये चल, तो ये चल और ल के बीच में तो कभी आएगा ही नहीं, तो ये तो आंसर कभी आएगा ही नहीं. और पूर्व और अंत क्रिया विशेषण हमेशा एक वाक्य में एक ही होता है. तो अब ये दो ए और सी आंसर में ही आपको सोचना होता है. एग्जाम कभी भी आप दो तो इस बात को ज़रा ध्यान में रखिएगा कि जब भी एग्जाम में आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन
अगर आपको कंफ्यूज करता है तो हमेशा ऐसे दो विकल्पों को चुनिए कि जो आंसर में आएगा ही नहीं। अब जो बचा जो दो विकल्प है, उन दो विकल्पों में भी आपको 50-50 करना है। मतलब जैसे हम मैच खेलते हैं वैसे इस तरह ही। अब 50-50 में कभी कभार आपका तुक्का जो है वो सही भी लग जाता है, कभी कभार अंधेर में तिल जो है वो सही भी लग जाता है और कभी कभार नहीं भी लगता है। तो देखो टेट की एग्जाम है, इसमें नेगेटिव क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, तो आप इसमें तुक्का लगा सकते हैं। जब आपको कंफ्यूजन है तो तभी आप तुक्का लगा सकते हैं, बराबर। तो ये सेकंड नंबर के क्वेश्चन का आंसर आएगा पूर्व में। चलो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य पहचानिए। ओके, तो ये चार ऐसे आपके सामने विकल्प है जिनमें एक ऐसा विकल्प है, एक ऐसा वाक्य होगा जो शुद्ध होगा, बाकी के तीन कैसे है, अशुद्ध है। चलो हम उसे पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या आपने मीना को पहचानी। ओके, नेक्स्ट बी क्वेश्चन, उसका आंसू रुकता नहीं, उसका आंसू रुकता ही नहीं। सी है आपके भाषण का एक एक शब्द तुला हुआ था। डी है तुम्हारी स्कूल कहाँ है। देखो शुद्ध वाक्य पहचानना गुजराती हिंदी सब में आएगा, ठीक है। तो आपको इसे आप इस तरफ ये जो शुद्ध और अशुद्ध वाक्य जो होते हैं हर बार 1 या 2 मार्क के अपने जो एग्ज़ाम होती है उस अपनी एग्ज़ाम में ये 1 से ये 2 मार्क आपका बनेगा शुद्ध और अशुद्ध वाक्य से ही। ओके, तो इसमें आपको ध्यान बटोरना ही होगा, नहीं तो फिर क्या आएगा आपका 1 मार्क चला जाएगा। तो आपको इसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे जो वर्तनी है, शुद्ध वाक्य है, ओके, समास है, संधि है, इनमें आपको ध्यान तो बटोरना ही होगा। कुछ ना कुछ आपका 1 मार्क जो है इससे लगा रहता है, ठीक है। चलो आपका आंसर आएगा मित्रों सी। क्यों? आपके भाषण का एक एक शब्द तुला हुआ था। अगर उसका आपको अशुद्ध वाक्य बनाना है तो ऐसे भी हो सकता है। कभी कभार लोग ऐसे भी बोलते हैं कि आपके भाषण के एक एक शब्द तुले हुए थे। अब जब आप एक एक प्रत्येक हर एक ऐसे शब्द बोलेंगे तो उसके बाद का जो शब्द आएगा वो कभी वो क्रिया जो आएगी वो हमेशा एक वचन में आएगी, ना कि बहुवचन में। तो यहाँ देखो एक वचन में लिया है क्योंकि एक एक शब्द ऐसे बोले हैं हम। तो तुला हुआ था तो एक वचन में ही आएगा, बहुवचन में नहीं आएगा। अब यहाँ देखो आप, क्या आपने मीना को पहचानी, तो मीना को पहचानी नहीं, क्या आपने मीना को पहचाना, क्योंकि आपने वो एक मानवाचक सर्वनाम है तो उसके लिए आपको क्रियापद भी पहचाना ऐसे आपको बोलना पड़ेगा। मतलब मानवाचक में हमेशा क्रिया बहुवचन में आएगी। उसका आंसू रुकता नहीं। देखो आंसू है ना 2 आंखों से टपकता है, आंसू है ना 2 आंखों से टपकते हैं। तो 2 आंखों से एक से ज्यादा 2 हो गए तो स्वाभाविक है वो बहुवचन में ही आएगा। तो यहाँ क्या होगा, उसके आंसू रुकते ही नहीं, ऐसा वाक्य होगा, बराबर। तो ये अशुद्ध वाक्य है। तुम्हारी स्कूल कहाँ है, तो तुम्हारी स्कूल कहाँ है ऐसा नहीं। स्कूल शब्द स्त्रीलिंग है, चलो हम मान लिए कि भाई स्कूल शब्द स्त्रीलिंग है, तो उसके वजह अगर कोई आप पुरुष को पूछ रहे हो, किसी लड़के को पूछ रहे हो, तो यहाँ तुम्हारी नहीं आएगा, यहाँ तुम्हारा आएगा। भाई तुम्हारा स्कूल कहाँ है, ये वाक्य सही रहेगा। बाकी आपका यहाँ सही और शुद्ध वाक्य जो है वो ये सी आंसर बनेगा। आपके भाषण का एक एक शब्द तुला हुआ था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि वाक्य किस काल में प्रयुक्त हुआ है। आपको काल बताना है, बराबर। देखो भाई काल 3 ही होती है, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल, ये 3 काल होते हैं, बराबर। तो आपके सामने तीनों काल के जो विकल्प है उनमें रखे हैं। अब चौथा विकल्प क्या है कि भाई तीनों काल में प्रयुक्त हुआ है। अब वाक्य को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि भाई कौन सा है, वर्तमान है, भूतकाल है, भविष्यकाल है। तो तुम्हारा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, फिर भी तुम बाहर आ गए। समझिए ये किस काल का वाक्य है। ऑप्शन ए है वर्तमान काल, बी है भूतकाल, सी भविष्यकाल और डी है तीनों कालों में प्रयुक्त हुआ। देखो गुजराती हिंदी में अंग्रेजी की तरह नहीं आएगा भाई, कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस, चालू वर्तमान काल, चालू भूतकाल, ऐसा नहीं आएगा कभी कभार। ओके, कभी भी नहीं आएगा। वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल से ऊपर कभी नहीं जाएगा। ओके, ये तीनों कालों से ऊपर कभी जाएगा ही नहीं। चलो आंसर आएगा मित्रों भूतकाल। क्यों भूतकाल? तुम्हारा बाहर आना खतरे से खाली नहीं,
तुम्हारा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, फिर भी तुम बाहर आ गए, मतलब ये क्रिया हो चुकी है, आ गए, तुम आ जाओ ऐसा नहीं है, यहाँ आ गए, जो गए जो है वो क्रिया हो चुकी है, गए, हो चुका था, हो चुका। तो ऐसी जो क्रियाएं बनती है वो भूतकाल में होती है। ये हो रहा है, ऐसा करना है, तुम्हें जाना है, तो ये सब जब है पीछे आएगा तो वर्तमान काल होगा। अब भविष्य काल का क्या होगा? भविष्य काल में तुम जाओगे, तुम कहाँ जाओगे, किस तरह करोगे, तो ज्यादातर क्रियापद के पीछे गे ऐसे जो मतलब मात्राएं रखी जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे भविष्य काल कहा जाता है। तो यहां अपना आंसर बनेगा भूतकाल, मतलब बी आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर का। निम्नलिखित वाक्य में से अव्यय छांटिए। आपको अव्यय यहां बताना है। आज मैंने बहुत कम खाना खाया, आज मैंने बहुत कम खाना खाया। चलो इनमें से अव्यय कौन सा है? ऑप्शन ए है आज, बी बहुत, सी खाया और डी कम। चलो देखो आज क्या है, तो आज ये जो है समय बता रहा है। ये क्या बता रहा है? समय है। मतलब जब कोई काल, ये काल मतलब कालवाचक भी कह सकते हैं हम, बराबर। तो आज, कल, अभी, अब, ओके। तो ये क्या है? काल है, मतलब ये अव्यय नहीं है। अब खाया, सी आंसर की बात करें तो ये क्या है? क्रिया है, तो ये भी अव्यय नहीं है। ये बहुत, बहुत क्या है? ये विशेषण है। क्या है भाई? विशेषण है, तो ये भी अव्यय नहीं है। तो लास्ट में आंसर बचा क्या? डी, कम। कितना खाया? तो भाई कम खाना खाया, बराबर है। खाना तो खाया, कितना? तो भाई कम। तो ये अव्यय बनेगा, बराबर। अब अव्यय किस तरह हम पहचान सकते हैं? देखो तो भाई अव्यय कभी भी व्यय नहीं होगा, उसका विकार नहीं होगा, चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग हो। ओके। अब आज मैं अकेला हूं, अगर हम सब ने, तो यहां ऐसा नहीं होगा हम सब ने कम खाया, यहां कम ही होगा, इसका विकार कभी होगा नहीं। अब जिस पद का विकार नहीं होता है उसे ही अव्यय कहा जाता है, मतलब जिसका व्यय नहीं होगा उसे ही कहते हैं अव्यय। तो यहां आपका आंसर बनेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। हृदय शब्द में किस संयुक्ताक्षर का उपयोग किया गया है? पहले तो भाई हम गुजराती, हिंदी और संस्कृत में ये शब्द ही गलत उच्चारण करते हैं। क्यों भाई गलत उच्चारण करते हैं? तो कभी कभार लोग बोलते हैं हृदय, कभी कभार लोग बोलते हैं हृदय। तो भाई इसका सही उच्चारण क्या है? हृदय। क्या है? हृदय। तो हृदय शब्द में किस संयुक्ताक्षर का उपयोग किया गया है? ऑप्शन ए है ह प्लस रू का, बी है ह प्लस र का, सी है ह र और उ का, और डी है ह य अ का। देखो सही आंसर क्या आएगा? तो ए आंसर आएगा। कैसे होगा? तो भाई देखो, चलो देखिए, ह और रू के मिलन से क्या बनेगा? ये बनेगा रू। ह और र के मिलन से क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, और बनेगा भी तो वो व्यंजन क्या होगा? हलंत रहेगा। ह और र के मिलन से क्या होगा? जो ह और र का जो है वो हलंत बनेगा। ओके। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। ह र और उ का क्या होगा? तो ह र उ का बनेगा ह प्लस र प्लस उ का बनेगा क्या? तो ह रू, ऐसा बनेगा। अब ऐसे तो कभी आते ही नहीं है, ऐसे संयुक्त अक्षर कभी आते ही नहीं है। अब ह य और य अ की बात करें तो ह प्लस य प्लस अ के मिलन से होगा य। जैसे कि हम बात करते हैं असह्य, तो असह्य में भी ए यह वाला आता है। ओके, असह्य। असह्य, तो उसमें जो ह और य के मिलन से जो संयुक्त अक्षर आता है इस संयुक्त अक्षर ये होगा। असह्य, बाह्य, ग्राह्य, इन सब में ये ह और य का मिलन से बना हुआ संयुक्त अक्षर आता है। चलो
7वें नंबर के क्वेश्चन पे हम जाएंगे, क्योंकि यहाँ के आंसर आएगा 6ठे नंबर का ए आंसर। 7वां नंबर का क्वेश्चन है मित्रों, गलत विकल्प चुने। गलत विकल्प चुने। चलो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ आपको पहचानना है कि भाई यहाँ घंटा शब्द लिखा है। घंटा ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्या इस तरह ये सभी सही है? अगर सही है तो इनमें से कौन सा गलत है, ये आपको चुनना है। तो मित्रों इसमें आपका आंसर आएगा सी आंसर आएगा। क्यों? देखो कि जब अनुस्वार के बाद ये पूर्ण अनुस्वार, इसे क्या कहते हैं? पूर्ण अनुस्वार। जब पूर्ण अनुस्वार के बाद किसी वर्ग का प्रथम व्यंजन या किसी वर्ग का कोई भी व्यंजन आएगा, तो उसको लिखने के लिए दूसरी तरह लिखने के लिए उसका ही जो अनुनासिक व्यंजन होता है उस तरह भी लिखा जा सकता है। मतलब कि घ पे अनुस्वार है, पूर्ण अनुस्वार, उसके बाद ट है, तो ट का जो है अनुनासिक व्यंजन वो कौन सा होगा? तो ट, ठ, ड, ढ और अण। तो इसका अनुनासिक व्यंजन कौन हुआ? अण हुआ। इसलिए यहाँ पे बीच में कौन सा व्यंजन आया है? ण। इसी तरह यहाँ भी च के ऊपर एक अनुस्वार दिया गया है, पूर्ण अनुस्वार। इसके बाद द व्यंजन है। अब तफ द ध न, त थ द ध न, तो द व्यंजन का अनुनासिक कौन सा हुआ? तो न हुआ। तो इस तरह भी लिखा जा सकता है, लेकिन वो आधा व्यंजन ही आएगा। इसी तरह आप देखो शंख में, तो शंख में भी अनुस्वार के बाद ख है और क ख ग घ अंग। क का अनुनासिक व्यंजन कौन होगा? क, ख, ग, घ, अंग। तो आ गया शंख। लेकिन यहाँ जो अनुस्वार दिया गया है वो कौन सा है? चंद्र बिंदु, या इसे अर्ध अनुस्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध अनुस्वार। अब यहाँ अर्ध अनुस्वार दिया गया है, इसीलिए ये सही नहीं है। भले ही अनुस्वार के बाद द होगा, लेकिन ये इस तरह कभी लिखा जा सकता नहीं है, इसीलिए ये गलत है। ओके, ये इसी तरह लिखा जा सकता है। जैसे कि आंख शब्द हम लिखते हैं, तो आंख का कभी ऐसे नहीं होगा, आंख ऐसा नहीं होगा भाई, ये गलत है। ये इसी तरह लिखा जा सकता है क्योंकि उस पर आंख है। ये ऐसे अनुस्वार है जिनका उच्चारण जो है वो एकदम कोमल है, जो पूर्ण संपूर्ण वो अपने नासिका पे जाता है। ओके, इसके लिए आपको अनुस्वार की थोड़ी बहुत जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएंगे हम। सही वर्तनी का विकल्प चुने। वर्तनी मतलब गुजराती में जेने આપણે કહીએ જોડણી, એને વર્તની કહેવાય। ચાલો સાચો વિકલ્પ ઓળખાઓ। ऑप्शन ए છે ફકીર, बी है जहर, सी नमाज, डी कलम। तो इसमें आपको सही वर्तनी का विकल्प चुनना है। 3 विकल्प गलत है और एक सही है, तो वो सही कौन सा होगा? तो भाई बी जहर। देखो यहाँ ज के नीचे जो ये बिंदु दिया गया है उसे नुक्ता कहते हैं हिंदी में। अब उसके नीचे क्या दिया गया है? नुक्ता। इसलिए उसे किस तरह बोला जाएगा? जहर, नॉट जहर। जहर नहीं, जहर, जिसका मीनिंग होता है विष। ओके, विष, जिसे हम गुजराती में कहते हैं जहर। ओके, अब फकीर जो है ये इस तरह नहीं लिखा जा सकता, ये गलत है। फकीर इस तरह लिखा जा सकता है, फकीर। ये फ जो है वो नुक्ता है, उसका उच्चारण कैसे होगा? फकीर नहीं, फकीर। कैसा? फकीर। ओके, अब नमाज में झ के नीचे अनुस्वार आता है, जिसे बोला जाता है नमाज नहीं, नमाज। क्या बोला जाएगा? नमाज। इसलिए अब यहाँ कलम में भी ये गलत लिखा है, तो इस तरह ही आपको सही वर्तनी चुननी होती है। यहाँ एक नुक्ता की वजह से आपको बहुत सारी दिक्कतें आई होगी आंसर टिक करने में, सिलेक्ट करने में। ठीक है, तो ये बात भी आपको गौर करनी है। ये 9वीं कक्षा में ये वर्तनी के सभी नियम जो है आपको दिए गए हैं, वो एक बार पढ़िएगा। 9वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, वचन परिवर्तन की गलत जोड़ पहचानिए। वचन मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में कभी द्विवचन नहीं आता है, संस्कृत में ही द्विवचन आता है। और यहाँ आपको एक वचन बहुवचन में सही है कि नहीं, अब परिवर्तन की गलत जोड़ आपको पहचाननी है। चलो, यहाँ लिखा है जिंदगी, तो इसका बहुवचन लिखा है जिंदगियाँ, सही है या गलत वो आपको पहचानना है। दासी, दासियाँ, तो ये सही है या गलत आपको पहचानना है। टोपी, टोपियाँ, सही है कि गलत। सदी, सदियाँ,
यहाँ सब कुछ आपको ऐसे ही लिखा गया है सब, इनमें से गलत कौन सा है? तो देखिए, ये जो जिंदगी शब्द है, जब ये एक वचन है, बराबर, दासी कैसी, जिंदगी कैसी, टोपी कैसी, सदी कैसी, ये शब्द स्त्रीलिंग है। जब स्त्रीलिंग शब्द एक वचन से बहुवचन में जाएगा तो देखो यहाँ क्या हो गया, जो दीर्घ था घी उसमें हो गया ह्रस्व, यहाँ पे दासी में था सी दीर्घ हो गया बहुवचन में ह्रस्व, यहाँ टोपी में भी देखो पी था दीर्घ, यहाँ हो गया ह्रस्व। लेकिन सदी में देखो यहाँ दीर्घ है और यहाँ भी दीर्घ है, यहाँ क्या होना चाहिए था, सदिया, सदिया ऐसे लिखना चाहिए था, मतलब यहाँ गलती की है। सिर्फ एक व्यंजन में ह्रस्व दीर्घ से आपका पूरा मार्क्स जो है वो जा सकता था, इसलिए आपका सही आंसर आएगा डी। समझ में आया? चलो आगे बढ़ेंगे। 10वां नंबर का क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए। यहां आपको संख्या दी गई है, भाई हिंदी में संख्या लिखना तो आता है लेकिन कैसे, अंकों में। अब शब्दों में आपको बताना है कि कैसे लिखा जा सकता है। चलो यहां आपको सही विकल्प चुनना है, 3 विकल्प गलत है, 1 सही है। यहां ऐसे 2 5 लिखे हैं जिसे हम कहते हैं 55, तो यहां सही लिखा है शब्द, देखिए ओके। 54, तो इसमें यहाँ 54 लिखा है, सही है क्या गलत है? 57, 57, 65, 65, कौन सा सही है भाई? चलो भाई आंसर, सही आंसर आएगा आपका बी इज द राइट आंसर। 54 कहते हैं, लेकिन यहाँ 55 में ये 2 च नहीं आएगा, एक ही च आएगा, 55, ओके 55 ऐसे रहेगा। 57, तो 57 यहाँ देखो 57 हो गया, और 57 है, देखो 57 आएगा, क्या आएगा 57। यहाँ 65, तो 65 में ये अनुस्वार कभी नहीं आएगा, क्या आएगा 65 आएगा, 65 नहीं 65, ओके। तो ये आपको बटोरना है ध्यान, तो सही आंसर है बी 54। 11वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, स्वर संधि के प्रकार में कौन सा विकल्प गलत है? देखो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 प्रकार की संधि आएगी, ठीक है। अब स्वर संधि के भी बहुत सारे पेटा प्रकार रह चुके हैं। चलो सही आंसर पहचानिए, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि या फिर लण संधि। चलो इनमें से आंसर आपका आएगा डी लण संधि। कौन सा आएगा? डी लण संधि। भाई ऐसी प्रकार की कोई संधि नहीं आती है। देखो स्वर संधि के 4-5 पेटा प्रकार है, स्वर संधि के 5 पेटा प्रकार है। कौन से है भाई 5 पेटा प्रकार? चलो एक आएगा सवर्ण संधि, या उसे दीर्घ संधि भी कहा जा सकता है, ओके। दूसरा नंबर का आएगा गुण संधि, ना कि लण संधि आएगा, ओके। तीसरा नंबर का आएगा वृद्धि संधि, ओके। चौथा नंबर का है आपका, तो वो होगा यण संधि, जो तीसरे बी ऑप्शन में लिखा है। और 5वें नंबर का जो आएगा वो आएगा अयादि संधि, जो अपने सी आंसर में, सी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो ये स्वर संधि के 5 पेटा प्रकार है, वो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे जाएंगे आप। गुरुपदेश, गुरुपदेश शब्द में किन 2 स्वरों के मिलन से संधि बनी है? चलो ये गुरुपदेश शब्द में है, तो एक का 2, ये गुरुपदेश शब्द जो है वो संधि की गई है, बराबर। वहां इसका आंसर ऐसे होगा कि भाई गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश, ये गुरु और उपदेश की संधि हुई, हमने संधि विच्छेद किया। अब गुरु और उपदेश में कौन सा है स्वर? तो ये र, छोटा वाला र है, उसको आप हलंत करोगे तो उसमें ये छोटा वाला जो ऊ है वो बाहर आएगा, छोटा वाला जो ऊ है वो बाहर आएगा, ठीक है। अब यहाँ भी छोटा ऊ और यहाँ भी छोटा वाला ऊ है, तो देखिए आपका आंसर बनता है ए, ऊ ऊ और बना दीर्घ ऊ। यहाँ देखो आप दीर्घ ऊ बना। भाई स्वर संधि में ये पहली संधि है जो हमें दीर्घ संधि कहते हैं।
और दीर्घ संधि में यही नियम होता है कि ये रस्व रस्व हो, रस्व दीर्घ हो, दीर्घ रस्व हो या दीर्घ दीर्घ हो। आंसर तो आपका आएगा, देखो सभी में दीर्घ आएगा। यह स्वर संधि का पहला प्रकार है। ठीक है, तो गुरु उपदेश जो शब्द संधि बनी है उसमें गुरु और उपदेश ऐसे संधि विच्छेद करोगे तो उनमें आपको दो छोटा वाला उ जो है मतलब ह्रस्व उ मिलेगा, मतलब लघु उ आपको मिलेगा। ठीक है, जिससे बना अपना दीर्घ उ। नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन, दुर्बल, बूढ़ा, युवा आदि विशेषण पदों का परिचय करवाए। चलो कौन सा ये है विशेषण, स्थानवाचक है, अवस्थावाचक है, स्पर्शवाचक है या दोषवाचक? तो आपका सही आंसर आएगा मित्रों बी, अवस्थावाचक। देखो बच्चों ध्यान दो, दुर्बल, बूढ़ा और युवा ये क्या है, अवस्थाएं है। हम जैसे अवस्था कहते हैं युवावस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ अवस्था, तो ये सब अवस्थाएं हैं। अब स्थान होगा तो क्या होगा भाई, कहाँ, यहाँ, उधर, इधर, ये सब स्थान होते हैं। दोष क्या होता है, तो वो दोष अलग अलग प्रकार के दोष होते हैं बराबर से। स्पर्शवाचक, तो भाई स्पर्शवाचक भी नहीं है यहाँ पे, यहाँ आंसर बनेगा आपका अवस्थावाचक बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, मुहावरे और उनके अर्थ की कौन सी जोड़ गलत है? देखो हमेशा आपको हिंदी में एक मुहावरे, ये 1 नंबर आपका फाइनल होगा, 1 मार्क्स, और एक कहावतें आपको याद करनी होगी। बहुत कम कहावतें हैं इसलिए आप एक याद कर लो उन्हें तो अच्छा रहेगा, ताकि आपका एक भी मार्क जाए नहीं। चलो यहाँ लिखा है लकीर का फकीर होना तो सीधी राह पर चलना, ये सही है या गलत? बी है आंसू पोंछना जिसका मीनिंग होता है हिम्मत बंधाना, सही है या गलत आपको पहचानना है। सी आंसर है ऑप्शन है चकमा देना मतलब धोखा देना, सही है या गलत? और डी ऑप्शन है मुंह पर थूकना मतलब शर्मिंदा करना। तो आपका सही आंसर आएगा मित्रों डी आंसर आएगा सही, मुंह पर थूकना। क्यों भाई, मुंह पर थूकना मतलब शर्मिंदा करना नहीं आएगा, मुंह पर थूकना मतलब जो बात है उसे उसी जबान में देना, उसे उसी तरह का देना, या फिर मुंह पर थूकना मीनिंग होगा कि भाई किसी को बेइज्जत करना। क्या होगा, किसी को बेइज्जत करना। ओके, तो यहाँ आंसर बनेगा डी। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन है, अत्युत्तम शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए मित्रों। चलो उपसर्ग और प्रत्यय ये 2 है हमारे हिंदी में। उपसर्ग का मीनिंग होता है जो शब्द के शुरुआत में आते हैं, बराबर। उपसर्ग का मीनिंग होता है जो शब्द के शुरुआत में आते हैं, शब्द के शुरुआत में आते हैं। और जो प्रत्यय जो है, प्रत्यय वो शब्द के अंत में आते हैं, शब्द के अंत में आते हैं। तो इसी तरह यहां हमें उपसर्ग बताना है कि भाई उपसर्ग, यहां देखो अत्युत्तम में पहले क्या है, उपसर्ग कौन सा है, अत से लगा है, अति से लगा है, अतः से बना है या फिर अधि से बना है। तो आपका सही आंसर आएगा मित्रों बी, अति प्लस उत्तम। यहां अति प्लस उत्तम आप इसे संधि भी कह सकते हैं, बराबर क्या बना, अत्युत्तम। अगर संधि के प्रकार से हम देखना चाहे तो यहाँ अति प्लस उत्तम ये यण संधि का उदाहरण बना रहा है। ओके, कौन सा, यण संधि, जो हमने स्वर संधि में देखा था ना, चौथा जो हमारा प्रकार था वो यण संधि। तो यहाँ अत्युत्तम जो शब्द है वो यण संधि का प्रकार बनता है। ठीक है, चलो तो बी आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का, आनंद बहुत बुद्धिमान लड़का है, वाक्य में बहुत शब्द खाली जगह है, क्या है? देखो यहाँ ऑप्शन ए है विशेषण, बी है क्रिया विशेषण, सी है प्रविशेषण और डी है सर्वनाम। ये किस तरह भाई है? एक तो पहले विशेषण तो समझ में आया, क्रिया विशेषण भी समझ में आया, सर्वनाम भी समझ में आया, लेकिन आपका आंसर बनेगा सी, प्रविशेषण। साहब जी ये क्या है बताइए हमें। ये प्रविशेषण हमने तो पहली बार नाम सुना, हमने विशेषण सुना, क्रिया विशेषण सुना, सर्वनाम सुना, लेकिन ये प्रविशेषण पहली बार सुना। सर हमें कुछ समझाइए। देखो समझाता हूँ, चलो देखो विशेषण के है ना, विशेषण कभी कभार बाद में और पहले ऐसे भी आते हैं। देखो और प्रविशेषण का मीनिंग क्या होता है, जब एक विशेषण तो दिया होता है। देखो आनंद बहुत बुद्धिमान लड़का है, यहाँ लड़का कौन है, विशेष्य है, लड़का कौन है, विशेष्य है। लड़के को क्या बोला, लड़का कैसा है भाई, बुद्धिमान है।
तो ये हुआ विशेषण, ये क्या हुआ विशेषण। ओके, यहां हमको क्या पूछा गया भाई, वाक्य में बहुत शब्द क्या है। ओके, तो यहां बुद्धिमान तो दिया है, बुद्धिमान विशेषण है, लेकिन जब विशेषण को भी और विशेषण दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण। गुजराती में हम कहते हैं ना विशेषणनु विशेष्य, गुजराती में क्या कहते हैं, विशेषणनु पर विशेष्य। तो यहाँ आपका आंसर है कि भाई विशेषण को भी विशेषण दिया गया है, तो यहाँ होगा बहुत, मतलब प्रविशेषण होगा। आपको एग्जाम में ये ध्यान रखना है। देखो यहाँ 20 क्वेश्चन से आपका पूरा जो मामला है ना वो बिगड़ भी जाता है। अगर 20 क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया, जिन जिन विद्यार्थियों ने ध्यान दिए हैं और बहुत अच्छी तरह भाग 1 से लेके एपिसोड 1 से लेके तथास्तु की हर एक सीरीज में आपने ध्यान दिया है, तो आपका जो एग्जाम होगा ना, एग्जाम में आपको बहुत मुनाफा होगा ही। ठीक है, तो प्रविशेषण मतलब सी इज द राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन होगा, शब्दकोश के क्रम अनुसार कौन सा विकल्प सही है, ये आपको पहचानना है। आपका इस टॉपिक का भी एक क्वेश्चन फाइनल होगा। चलो समझते हैं मित्रों, आपको यहाँ आंसर कौन सा आएगा समझा दूं पहले। देखो शब्दकोश में हमेशा शुरुआत जो होती है स्वर से होती है। कहाँ से होती है, स्वर से होती है। ओके, तो यहाँ हमको पहले स्वर में ध्यान देना है। देखो यहाँ हमें किसी देखो यहाँ पवन व्यंजन से शुरू है और इनमें स्वर जो है वो बीच में, मतलब ये आंसर तो बिल्कुल गलत ही है। हमारे 4 में से एक तो गलत निकला, साबित हो गया है। अब चलो समझते हैं कि भाई किस तरह आएगा। देखो यहाँ अ है और यहाँ भी अ है, बाकी सब व्यंजन से शुरू होते हैं। तो चलो ध्यान दे कि दूसरे नंबर पे कौन सा व्यंजन है, तो न है। और जब व्यंजन की शुरुआत होती है वो क से होती है, तो क से लेके हम चलेंगे तो कौन सा आएगा भाई सही आंसर। तो चलो क से लेते हैं कि क ख ग घ अंग, च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न, तो न वाला आया, दैट मीन्स ये पहले ही आएगा। उसके बाद अलसाई आगे आएगा, क्योंकि ल वाला जो व्यंजन है वो व्यंजनों के क्रम में बहुत अंत में आते हैं, बराबर, अंतस्थ व्यंजन है। अब व्यंजन की बात करें तो यहाँ तो खत्म हो गया भाई, स्वर का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये दो सही क्रम में है। यहाँ भी ऐसे देखो क्रम दिए गए अनोखी और अलसाई, लेकिन यहाँ जो है अलसाई और अनोखी ये गलत है, मतलब हमारे 2 आंसर तो गलत हो गए। बस भाई 50-50 मैच खेल दो और वर्ल्ड कप थमा दो उनके हाथ में। चलो तो अब यहाँ जल है, यहाँ पवन है, पानी, संसार, चलो उसके बारे में समझते हैं। देखो भाई क ख ग घ अंग च छ ज, तो ये ज जो है क्रम में सही है। फिर यहाँ प है, लेकिन यहाँ जब आप उनके जो स्वर व्यंजन के 12 अक्षरी के क्रम में जाओगे तो पहले प, पम, फिर बाद में प और बाद में आएगा पाम और पा। क्योंकि हिंदी में थोड़ा उल्टा है। गुजराती में क्या होगा कि पहला सिंपल वाला व्यंजन उसके बाद अनुस्वार वाला, हिंदी में थोड़ा उल्टा है कि पहले अनुस्वार आएगा उसके बाद सिंपल वाला आएगा। ओके तो यहाँ पवन है और उसके बाद पानी है, तो सही है। और ये संसार, मतलब आपका आंसर बनता है मित्रों ए आंसर इज द राइट आंसर। बाकी में देखो यहाँ जल बाद में है और यहाँ पवन पहले है, तो इसी तरह आपको आंसर जो है ए सही रहेगा। 18 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सी क्रियाएं अकर्मक है। आपको यह पता होना चाहिए कि क्रिया में भी अकर्मक, सकर्मक और द्विकर्मक आते हैं। क्या आते हैं, अकर्मक। मगर जिन क्रियाओं में कर्म लगते नहीं, कर्म होते नहीं, ओके, कर्म नहीं होते हैं, वे क्रियाएं अकर्मक कहलाती है। जिन क्रियाओं में कर्म होता है वो उन्हें सकर्मक कहते हैं, और जिन वाक्यों में एक से ज्यादा 2 क्रियापद हो, 2 कर्म हो, तो उसे द्विकर्मक कहते हैं। हमें यहाँ पहचानना है कि भाई अकर्मक कौन सा है। देखो आना, जाना, बैठना, आपका आंसर ये बनेगा ए आंसर। किस तरह बैठेगा भाई ए आंसर, ए आंसर आपका राइट है, सही है। देखो आंसर से आपको पता था, आना, कहाँ आना, जाना, कहाँ जाना, क्रिया को आप क्वेश्चन करो, प्रश्न पूछो, आना, जाना, बैठना, तो यहाँ आप बोलेंगे कि भाई कहाँ, बराबर है। जिन क्रियाओं को अगर आप क्रिया से
क्या प्रश्न पूछते हो, क्या प्रश्न पूछते हो, और अगर आपको आंसर मिल गया तो समझ लेना कि वो सकर्मक है। देखो, देना क्या, तो ये सकर्मक है। खोना, क्या खोना, क्या लाना, तो ये सकर्मक है। ये तीनों क्रियाएं क्या है, सकर्मक है। सी है बैठना, कहाँ बैठना, ये अकर्मक है। देखो, करना, क्या करना, ये सकर्मक है। लिखना, क्या लिखना, ये भी सकर्मक है। लेकिन यहाँ एक ही अकर्मक है, आपको तीनों के तीनों अकर्मक होना चाहिए। पढ़ना, क्या पढ़ना, जाना, कहाँ जाना, तो ये अकर्मक है। बेचना, क्या बेचना, तो इनमें भी दो सकर्मक एक अकर्मक, यहाँ तीनों की तीनों अकर्मक क्रियाएं है, मतलब ये आंसर सही रहेगा। 19वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है मित्रों, कौन सी जोड़ ठीक नहीं है? देखो, कौन सी जोड़ ठीक नहीं है, यहां आपको समझना है। ऑप्शन ए है साधु साध्वी, डी है मेढक मेढकी, सी है भाई बहन, और डी है डॉक्टर डॉक्टरनी। देखो, यहां भाई साधु शब्द है, तो साधु का क्या होगा, यहां साधु पुल्लिंग शब्द है, ये क्या है, पुरुष है। अब यहां पुरुष का स्त्री क्या होगा, तो भाई साध्वी होगा, तो सही है आंसर। मेढक जो है उसके स्त्रीलिंग में क्या कहते हैं भाई, मेढक मेढकी। अब भाई होगा तो भाई का स्त्रीलिंग क्या होगा, बहन थोड़ी ना होगा, वो तो क्या होगा, भाभी होगा भाई, ठीक है। डॉक्टर है तो डॉक्टरनी, जैसे कि साधु तो उसकी पत्नी साधनी होगी, मेढक की पत्नी को मेढकी कहते हैं, डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी कहते हैं, लेकिन भाई की पत्नी को बहन नहीं कहते, भाई की पत्नी को भाभी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका बनेगा आंसर सी इज द राइट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन आपका इस तथास्थ के भाग 5 के सीरीज का है, और ये है नाविक शब्द में उपसर्ग खाली जगह है। देखो, उपसर्ग का फिर से एक और क्वेश्चन आया, तो समझना है, नाव, नाव, इक और नो, 4 ऑप्शन है। इनमें से सही आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। क्यों कि भाई ये अयादी संधि का नियम है, ये अयादी संधि का नियम है। क्योंकि भाई अयादी संधि में ये लिखा गया कि भाई जब औ प्लस ई हो तो उसका आंसर आपका होगा आवी। जैसे कि नौ प्लस ईक क्या होगा, नाविक, क्या होगा, नाविक होगा। किस तरह भाई नाविक हुआ, तो समझो, अब 9 और प्लस ईक हम यहाँ करते हैं, न को हलंत करके इनमें से जो स्वर है औ उसे हम अलग तरह रखेंगे ताकि हमें समझने में कोई दिक्कत ना हो, और बाद में लिख देते हैं ईक। ओके, अब यहाँ हमने देखा कि भाई औ प्लस ई बराबर क्या होगा, आवी, तो यहाँ प्लस औ प्लस ई बराबर क्या होगा, आवी। औ और ई निकल गए, न जो है हलंत है इसे आगे रख देंगे, क पीछे रख देंगे, न में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ना बन जाएगा। बस उसके बाद विक जो है लगा देना है, ओके, ताकि जो ना है वो बेचारा मुंडा न रहे, बराबर। बेचारे के बाल चले गए हैं, इसीलिए ना को क्या कर दिया हमने, वीक पहचान दिया, वीक पहला दिया, तो ठीक बन गया हमारा नाविक शब्द। ओके, इसी तरह हमारे वेब संकुल के ऑनलाइन माध्यम, ऑफलाइन माध्यम, सभी माध्यम से आप जुड़े रहे, अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त करते रहे, और अपनी जो आकांक्षा है, जो अपनी इच्छा है, बराबर, हम सबकी कुछ ना कुछ इच्छाएं रहती है, महत्ता रहती है, वो आप सबकी पूर्ण हो। और दिवाली की, और जो नया साल है हमारा, जो कार्तिक सुद एकम हम गुजरातियों में नया साल कहते हैं, इन सबकी वेब संकुल इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं चिराग जोशी आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। अब अच्छे से आप खुशहाल रहिए, आपका जो साल है पूरा वो अच्छे से जाए, आपका पूरा जो सपना है, मनोकामना है जो आपकी, वो पूर्ण हो। जय हिंद, जय भारत, और बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।